again. Okay, we start our journey. We just one or two more few heads want to get admitted. Just admit them. অন্তরা একটু জলটা দিয়ে যাবে, অন্তরা একটু জলটা দিয়ে যাবে, জলটা একটু দিয়ে যাবে। Okay, here we go. Today's class is special because many of the special topics I will be discussing today. Theory session. Huh? Theory session. Okay, in generally, I love to do it with respect to the mathematical bunch of things, but today my focus and core area will be on the theoretical balancing. So let's get started. On the basis of some of the things which keep on going in our mind, and आज कुछ special चीज भी करेंगे, that how to identify a distribution. Then identification of inequalities. Remember that inequalities मतलब कहाँ पर कौन सा inequality लगता है. Stat में ये जरूरी. Statistics में we have been always taught about F distribution means if this is the area, but just by seeing the problem, how to decide. Similarly, testing structures, ये सब के ऊपर भी काम करेंगे. Okay. So now, basically, if we know that n ka value less than 30, okay, let's go for t test. N greater than equal to 30, we go for a z test. And these are like very basic one or two distinctive properties which we already know. Okay. So, but now, what is a real life random case? So if I just talk about a random case first, let me just clear it out. So this is some of the basic standardization questions which has been asked in ISS interview, in UPSC's interviews, in ISI MSTAT's interview, DSIM's interviews, all these things, and obviously in IIT-JAM also there. So what they're looking for, okay? So मैं अगर बोलूं, can you give a true random case? I always say that random is not always random and not everything is equally random. Some things randomness is relatively larger than the other random cases, है ना. कुछ के randomness ज्यादा होते हैं और कुछ के randomness कम है. जैसे for example, if I say that weather forecast, it's still a random, but हम लोग को पता है एक range के बाहर ये जाएगा नहीं, है ना. But what happens if I talk about a loan approval by a particular bank? Bank-wise loan approval changes. And if there is a war, India is in the middle of a war maybe. Although I personally believe that a war is coming. जैसे आप लोगों को शायद पता है कि India is being attacked by the not confirmed, but I think it's a terrorist attack at New Delhi, which happened 3 days back. लेकिन इसके साथ साथ इंडिया का जानी दुश्मन पाकिस्तान, they also been attacked exactly with the very similar thing, and 12 people died, and that is also in front of their main Islamabad High Court. ठीक है. So the next target may be Colombo, the weak Asian capital. Okay, India के नीचे में छोटा सा ये जगह. So now
a pattern is being forming. Anyway, come back to the studies. So if I say the loan approval with respect to the war time will be become zero. युद्ध में लोग तो लोन लेंगे, युद्ध में बचेंगे मरेंगे क्या पता, पूरा लोन लो, 10 करोड़ का लोन ले लो, वर्ल्ड टूर में निकल चलो, वापस तो देना नहीं, ऐसे वापस भी आना नहीं, घर भी तो नहीं बचेगा, ठीक है, क्या कर लेगा? Like this, isn't it like this? So the diabolical situation happens when the randomness becomes very random. But weather में क्या change आएगा? But still weather is becoming random, but not that random. So this is the structurization of a random variable which we can talk about. And second thing is that here the randomness, if I say y equal to alpha beta xi, beta x1 or beta 1 x1, beta 2 x2, in the x2 here, in the x2 here is associated with another variable. There is a time variable. तो समय के साथ साथ ये बदल जाएगा, कभी इसके साथ बदलता है. Things are a little bit of complicated in some portions. Till now, any questions? Okay. Okay. Yes, one of you have asked me a question, is that so PDF is density, CDF is density, so what's the basic difference between them? Nice question. So cumulative density and probability density. So probability density is structure by separate probability values, and what happens if you make it as a additive pattern? Okay. In case of associated variables, any one of them cracks, it's like a big family. CDF is like a family. So previously एक family में 15 बच्चे होते, इसमें से अगर एक भी बच्चा शाइन कर जाता था तो बाकी 14 बच्चे को उतना शाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती. It's very much common. So till now also it happens, but if a family now have only one or two, then the dependency ratio is too high, so you are actually forming a simplistic PDF pattern. Okay. So if you play with respect to multiple ways, now again in statistically there is a clause. I always try to give real life experiences, and for example, which formation is better or which restaurant is better? If a restaurant is only giving you Chinese food and another restaurant is giving you Punjabi, Chinese, and alongside that it is also doing normal North Indian food, and they also make idli dosa, so South Indian bhi aa gaye. And alongside that they make chicken tetrazzini and egg Florentine, fish meunière, like some of the famous continental dishes also. कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो इतना मोटा सा एक मिलता है, ठीक है, लगता है क्लास 12 का मैथ्स का बुक है, चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते, 2 बार आके वेटर वापस चला गया, हम लोग का खत्म ही नहीं हो रहा है. मतलब लिखने के लिए पेन दे सकता है क्योंकि भूल चुके हैं ना पहले में क्या चूज किया था. So which restaurant is better? Very hard choice, right? So if I go for any singularistic thing, I cannot be having the liberty to switch. So CDF gives you the chance to switch from one to another. Okay, but PDF is just like you are into a Chinese restaurant, you are not having anything. Okay. But the problem of the CDF is you don't know which one to be more dependent. कोई भी चाहे ऐसे मिक्स टाइप के रेस्टोरेंट्स में अगर तुम अपने शहर का कोई भी फेमस 5 रेस्टोरेंट्स का नाम बोलोगे उसमें मिक्स टाइप का कोई भी रेस्टोरेंट नहीं आएगा, है ना. कैफे आ सकता है, बट कैफे भी आर ऑलवेज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग मोस्टली कॉन्टिनेंटल फूड. कैफे में क्या मिलता है? फिश फ्राई, मतलब फिश एंड चिप्स नाम से वो लोग बेचता है. अल्टीमेटली वही कॉन्टिनेंटल ही हो गया, यूरोपियन फूड ज्यादा, है ना. वहां पर में तुम्हें क्या खिचड़ी मिलता है कभी, ठीक है, गाजर का हलवा. एंड इफ दे मेक डेजर्ट आल्सो, दैट इज लाइक व्हाट, मफिन, ये वो यही सब चीजें. So in very recently Zomato and District and India Today and बहुत सारे magazines ने मिलके इंडिया के top 50 रेस्टोरेंट का लिस्ट निकाला.
Most of you haven't seen it. Luckily is अपने कोलकाता का एक रेस्टोरेंट इसमें आ गया, वो भी 6 नंबर, मैं तो शॉक हो गई. And that's called Sienna Cafe. It's in Goriad and all. If you're not in Kolkata, you're not interested, I understand. But the thing is that if this list is made by some other companies, with respect to full honesty, not taking money from anyone, this list could have been different. Okay. And as it is being done by a normal, अब यहाँ पर भी 3 चीजें, again I'm introducing variable. जैसे मान लो यही चीज मैं अगर करता हूँ, so I will always go for those kind of restaurant which is specialized. But if you ask your mom and dad to do it, they will be going to this restaurant. In their top 50 list में ये सब restaurants आएंगे, क्योंकि वहां पर भी एक बच्चे को चाइनीज खाना होता है, एक बच्चे को सिर्फ फ्रूट जूस ये कॉफी ये सब पी के वो रहता है, तो एक रेस्टोरेंट में इतना साइड का कहाँ से आएगा? सब लोग इस रेस्टोरेंट में चलो, जिसको जो खाना है ऑर्डर कर, सिर्फ मैं बिल दे सकता हूँ, चूज नहीं कर सकता. Like this, isn't it the story we all faced? Okay. So in many of the cases, when we take the long run, like minus infinity to plus infinity x and fx and this mean, so we take every possible occurrences into our consideration. Okay. Now next thing. One thing I would like to point out in this case, many of the cases, the correlation of these things are fake correlation also. So sometimes the proper correlation is not happening, but you are establishing a correlation. Okay. So we will come to this after I go for the main attraction of today's class, और ज्यादा से the wow corner के हिसाब से करने जाऊंगा. अभी तक के लिए कोई और सवाल है? One question is, yes, the PDF of a distribution cannot exceed unity. So can how would they happen? Yeah, PDF means probability density. So it's like all the probabilistic values. It's like 0 to x to 5, okay, 3 to x to 9, and 10 to x to 70. So if I ask you to find a common range behind this, these are all minimum, you took the maximum. These are all maximum, you take the minimum. So it is becoming 10 to x to 5. Is it possible? No. So suddenly this formation is not a PDF structure. Why? Because you see, you need to find a common zone. 0 to 5 यहाँ पर, 3 से 9 तो भाई यहाँ से यहाँ हो गया, चलो फिर भी कॉमन है, लेकिन 10 शुरुआती होता है इसके बाद से और चलेगा. So suddenly you are asking it to a common density structure, but you are giving different ranges. Okay. जैसे मैं और एक real life example दे सकता हूँ. Like every week I have a very good habit of making list. मैंने अपने जिंदगी में बहुत कम उम्र से ही जितना काम किया है, ओके, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मनी और नोइंग पीपल, लेकिन जितना मैंने काम किया है, दैट इज मच हायर देन एनीवन आई नो. आप कहोगे सर अपना बढ़ाई खुद ही कर रहे हैं. बोले सीधी सी बात है, मैंने बहुत चीजों में काम नहीं किया. फर्स्ट ऑफ, सो इफ आई वाज अ कलेक्टर ऑफ 2 थिंग्स, DVDs of movies, गेम कभी नहीं खेला मैं, और दूसरा था बुक्स. तो अभी के जमाने में मेरे पास खरीदा हुआ बुक का संख्या है ऑलमोस्ट 5000. सुन के लगता है ऐसे 5000 बुक में सर इतना बोल रहा है. नॉर्मल कलेक्टर के पास 5000 इज लाइक इम्पॉसिबल थिंग. और मेरे पास कोई आलिशान पैलेस नहीं है, और मेरा घर आके आपको देख के से पता नहीं चलेगा सारे तरफ बुक रखा है, ऐसा भी नहीं. Those who know me, ठीक है. And the DVDs also. DVDs तो बस I didn't know कि टेक्नोलॉजी बदल जाएगा, फेंकना पड़ेगा, that's a complete useless. But the collections which I made much more higher than a normal thing, so I didn't diversify the thing. तो मैं लिस्ट भी बनाता हूँ, हर हफ्ते में एक लिस्ट बनाता हूँ. क्या चीज का लिस्ट है कि इस हफ्ते क्या क्या मीन्स अभी भी I have a keen look for the movies. All types of movies, documentaries, normal Hindi movie, action movie, anime movies, anything you talk about. So what I do, I make a list of movies which is watchable, available in what OTTs or which torrent I can download. Movies देखने का टाइम नहीं, लेकिन लिस्ट हमेशा रेडी है. तुम मुझे पूछो, मैं हमेशा बोलता हूँ. So this gives me an immense happiness working on this, and this gives me a power that I can still have the edge.
So when you are doing a test, so you have to check the power of the test. So test का power क्या होता है? So irrespective of the test is powerful मतलब क्या? Less error. That's it. So as we are going to choose the testing, पहले जान लेते हैं test को भी तो error free होना है. Okay, how to make a test error free? So first of all, how you choose the values and thing. ठीक है, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है. तो आप क्या करेंगे? One might, there are two types of error. We know type 1 and type 2 error. Formula wise, आप Google करो, ChatGPT करो, so they will give you 1 minus type 2 error. सवाल ये आता है क्यों type 2 error? Why not type 1 error? अब अगर भूल भी गए हैं type 1 type 2 error क्या है? गलत वैल्यू को सिस्टम में ले लिया और सही वैल्यू को सिस्टम से हटा दिया. ठीक है, गलत वैल्यू को सिस्टम में ले लिया और सही वैल्यू को सिस्टम में ना लेना. बहुत आर एरर. सही वैल्यू को सिस्टम में ला लेना मतलब टाइप 1, गलत वैल्यू को सिस्टम में ले लेना मतलब टाइप 2. टाइप 2 इज मोर डैमेजिंग देन टाइप 1. ठीक है, नाउ यू आर वर्किंग विद अ सिस्टम व्हिच हैज समथिंग रॉन्ग. इट्स लाइक वाइड, ये ऐसा है, मान लो आपका ऑपरेशन चल रहा है, आप बहुत पावरफुल इंसान हो लेकिन हार्ट खोल के आपका ऑपरेशन चल रहा है और उस वक्त गुंडे आ जाए आपको मारने के लिए, तो हार्ट को ऐसे हाथ में लेके ये लड़ाई करेंगे क्या? यू विल डाई. It is possible in Bollywood. बॉलीवुड में शायद पॉसिबल है बट रियल लाइफ में नहीं है. ठीक है, सो यू नीड दैट एक्स्ट्रा टाइम एटलीस्ट. सो टाइप 1 एरर इज जस्ट लाइक दैट. सो इन ऑर्डर टू मेक इट एरर फ्री, समटाइम्स यू हैव टू चूज बिटवीन टू एरर्स. ठीक है, हम लोग हमेशा सोचते हैं एक सही होगा जिंदगी का रिश्ते में और दूसरा रिश्ता हमेशा गड़बड़. नहीं, इट्स एक्चुअली सब रिश्ते खराब है. माँ बाबूजी का रिश्ता को अगर छोड़ दे, और माँ बाबूजी के रिश्ते में भी वी वेरी इजीली कंपेयर. 100% ऑफ द केसेस यू कैन से whom you love more, मॉम और डैड. सब लोग बोल सकते, कोई मानेगा नहीं, मैं भी नहीं मानूंगा भाई, बट वेरी इजीली choose any one of them. But it's not that any one of them, but whom you love the most, or let's say उल्टा तरीके से whom they love you more. ठीक है, मम्मी तो मेरी फेवरेट है, इट्स लाइक दैट. पापा तो मेरे फेवरेट है. ओके, so you can still choose in those kind of cases. Okay, so but in those kind of erroneous situations, what you have to choose? What happens? You have to choose between, if you are in a bus, okay, and in a bus there are seats और सिर्फ विंडो सीट दो जगह में खाली है. यहाँ पर भी एक मोटा सा भद्दा सा बेकार सा बदबूदार इंसान बैठा है, यहाँ पर भी ऐसे ही सेम इंसान बैठे. आइदर सीट छोड़ दो, खड़े रहो 6 घंटे के लिए, या फिर दोनों में से एक में बैठो. कौन से में बैठोगे? जो दोनों खराब लोगों में से थोड़ा कम खराब लगेगा. That's the decision we take. So here also type 1 error is still damaging, type 2 error is still damaging, but type 2 error is more damaging. So if I have a more type 2 error, so it's a less chance of being accepted. Okay? So that is the power of the test we have just discussed. So now basic discussions are over. Now we are getting to the cross-checking part. Okay, one of you have said, sir, is there any factors affecting the power? Yes, power को affect करने के लिए first तो obviously size is there. याद रखिए, जितना बड़ा size उतना बड़ा error. Okay, so पहले जमाने में जब शादी होता था, there was not much of a divorce. Okay, so now why it is happening? People have become bad and all. ये वो बहुत सारे हैं. But what I personally say that the choice criteria. Okay, when you have more choice, you feel like, I have done a bad thing, I can get someone else also. Okay, so पहले जमाने में 30 किसी का एज हो गया, 32 एज हो गया, 34 एज हो गया, it's very hard to find another partner. कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, टिंडर, बम्बल ऐसी चीजें नहीं थी, है ना? अभी आसान है. So you can get any partner at 50 also, and you don't have to be famous. घर बैठे ही सब काम हो जाए. So you can, at any age, you can decide to take the liberty. So again, the size has become big. So whenever you are doing a testing of hypothesis, so large data, the delta is that the effect size of the effect is sigma by root n. तो जितना n बढ़ेगा उतना ही error भी बढ़ेगी. क्योंकि देखो, this by this मतलब उल्टा करने पर root n ऊपर जाएगा, n higher, error भी higher. Okay, this is the effect size.
Alongside that, a sample size. So greater power, n higher, so greater power. So this time error false, isn't it? Huh? So I do it with a very good sample. Remember that effect size is not dependent on higher power, is dependent on the how much effect you are taking. So randomly you are choosing values in order to get a big value, then you get a wrong value. समझ में नहीं आया. जैसे मान लो I have to choose a dog, मुझे एक कुत्ता चूज करना है जो अपने घर में मैं रखूं. अब नॉर्मल इंसान को पूछो कि उसे दो तीन ब्रीड पता है, एल्सिसियन, डोबरमैन, डाल्मेशियन, और क्या है, पाग है, ठीक है, ग्रेट डेन है, और अपना सबका फेवरेट क्या है? नहीं नहीं, गोल्डन रिट्रीवर. लैब्राडोर भी है, गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर ऑलमोस्ट एक ही जैसा लगता है मुझे. ठीक है, गोल्डन थोड़ा ज्यादा फड़ी है, उसका जैसे फर निकाल दिया तो लैब्राडोर आ गया, ऐसा लगता है. ओके, बट दोनों का बिहेवियर एंड ऑल आर वेरी स्वीट काइंड ऑफ. गोल्डन रिट्रीवर थोड़ा ज्यादा स्वीट होता है. ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग. सो नाउ इफ आई हैव टू चूज बिटवीन ये 7 डॉग ब्रीड में, फिर भी मैं चूज कर लूंगा. लेकिन तुम लोगों को पता है दुनिया में 300 से भी ज्यादा डॉग ब्रीड्स है. सो वन ऑफ माय फ्रेंड हैव परचेज्ड डॉग ब्रीड्स बाय डीके पब्लिकेशन का डॉग ब्रीड्स का एक बुक आता है. ठीक है, सो now suddenly it become impossible for him to choose and he will always come up with the wrong data, wrong solution. जो भी कुत्ता खरीदेगा उसे लगेगा 299 अलग टाइप के भी थे, शायद उसमें कुछ अच्छा था. It's quite like going to a restaurant और पास वाले का खाना देख के हमेशा लगता है उसमें ज्यादा अच्छा होगा, है ना? निकलने का रास्ता क्या है? इसलिए मैं हमेशा बुफे वाले रेस्टोरेंट में जाता हूँ. सबका खाना सेम, वो जो खा रहा है जगह कहाँ से लिया रे, लेके ऑर्डर कर दो. And third most important part is the significance level, the alpha. Alpha is the significance level. If you choose it like 5%, 2.5%, 1%, ये जो मैं level को choose करता हूँ, that also decides. After a certain point of time, things may be a different. And we have to choose. We have to choose. It's quite like एक दुकान में मान लो there are 5 customers have come on a certain point. तुम जाओ, वो 5 कस्टमर में से शायद 1 या 2 लेगा या फिर कोई नहीं लेगा. लेकिन एक कस्टमर के साथ आप पहले से डील कर रहे थे जो डील ऑलमोस्ट डन है, लेकिन इसके साथ और भी डील करोगे तो ये 5 बोलेंगे बाबा दुकानदार बिजी है, चलो दूसरे दुकान में जाते. इट्स रिस्क. और तुम अगर इन 5 को लेके बिजी हो जाओगे, ये सोचेगा मैं तो खरीदने ही वाला था, ये मुझे ही पता नहीं दे रहा, भाड़ में जाओगे. Both are risky. Again, which one to choose? That is decided by alpha. याद रखिए, अल्फा इक्वल टू 1 मत तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर, मतलब दोनों को ही बचाना है. अल्फा इक्वल टू 5 मत, यू कैन चूज द एंड यू कैन स्टिक टू द प्रीवियस. रुकिए, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, पहले इनका डील डन होगा, फिर आपके साथ काम करेंगे लाइक दिस. ओके, और स्टैटिस्टिकल आंसरिंग में कभी भी ये मत सोचना कि तुम क्या करते, तुमसे कोई दुनिया नहीं है. ओके, थ्योरी क्या कहता है, दैट वी हैव टू चूज. Clear? Till now it is, I guess, okay. So now how to know which distribution to apply? Distribution के लिए which distribution to apply? ये कोई भी इंटरव्यू लेवल क्वेश्चंस के लिए, these are the type of master questions which we are discussing in today's class. If you have joined late, and there are some hidden tricks also. ओके, पहला तो है बहुत आसान से कुछ चीजें, इट्स लाइक डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है अपना, ये सब हम लोग देख लेंगे. ठीक है, पैरामीटर्स देखेंगे, ये सब तो किताबों में लिखा ही. ठीक है, 2-4 चीजें तो लिखा है. ठीक है, whether there is a group, there is a comparison or not, how to deal with the variance and all these things. ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ n से, n less than 30, n greater than equal to 30. Then this is a t and this is a z. Z से chi स्क्वायर कैसे जाएंगे? If all these values are square, so that's a chi स्क्वायर. मतलब Z values का स्क्वायर ले लिया, means नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाना, ऐसा कुछ भी चेंज हुआ तो डायरेक्ट chi स्क्वायर में पहुंच गए. ओके, if you can count the data, if it is countable, then it is either binomial, Poisson,
or NB. NB means negative binomial. What is the difference between binomial and negative binomial? Binomial means 10 में से भाई 5 सक्सेस आने का चांस क्या है बताओ. This is binomial. And मैं आपको पूछता हूँ, if I just give you like I need 5 successes, I don't know how many trials you need, मुझे बताओ कितना ट्रायल चाहिए. 5 सक्सेस चाहिए. Okay. ये sometimes you have seen like पहले जमाने में होता था, अभी नहीं होता है, कि someone, एक महाराजा को अपना वारिस चाहिए. ठीक है, उन्हें क्या चाहिए? वारिस के लिए एक लड़का चाहिए जो महाराजा बनेगा. तो वो पहले रानी के पास जाते हैं, रानी प्रेग्नेंट होती है, लड़की पैदा होती है, नहीं हुआ. दूसरा नहीं हुआ, तीसरा शादी हो गया, चौथा शादी हो गया. सो इज कीप ऑन डूइंग मैरिजेस जब तक ना उसे वारिस मिले, है ना. इट्स अ सिंपल केस ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल. सो हियर n इक्वल टू सक्सेस इक्वल टू 1. सो until and unless like this. ठीक है. और he marries a single girl and keep on making her pregnant until and unless a boy born. So this is with respect to multiple variable binomial, negative binomial, and what happens if it is done with a single set of variable. मतलब negative binomial लोग हमेशा सोच रहे थे कि एक ही variable से ही होगा. No, what happens if separate structure, all you need is a single success from the all set. तो ये बहुत ही, ये थोड़ा racist example है, लेकिन ये सच भी है. Okay, getting the logic? Negative binomial मतलब binomial with negative values ऐसा नहीं. Success trials will continue till a pre-decided number of success achieves. ठीक है. When I was a kid, I came up with a solution. कि लोग ऐसा लड़कों के पीछे क्यों पड़े? Why they need a waris? It has to be a man. तो मैंने लॉजिक देखा कि भाई लड़कियों का तो शादी हो जाता है, फिर दूसरे की जगह पे जाएंगे तो सच में तो ये तो सल्तनत तो बेकार हो जाएगी. तो why not getting them married? ठीक है, महारानी पैदा हुई है, शादी मत करो, यही पड़ी रह जाएगी, झमेला खत्म. It was an easy solution that time. ये नहीं पता था कि बाद में भी यही सोल्यूशन बहुत काम आएगा. तुम लोगों को पता है बेनजीर अली भुट्टो पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर. ठीक है, उनकी बेटी का नाम क्या है? सॉरी, जुल्फिकार अली भुट्टो का बेटी का नाम है बेनजीर अली भुट्टो. एंड शी वाज किल्ड ब्रूटली. शी वाज मैरिड एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन फिर वो अपने फैमिली को छोड़ के सिर्फ देश के लिए काम करने आई, और कुछ ज्यादा ही दिन नहीं तो काम कर पाई. ओके, शायद पाकिस्तान था, ऐसा था इसलिए. गेटिंग द लॉजिक? अच्छा, अगर मैं समय का बात करूं, टाइम बिटवीन इवेंट्स, तो हमेशा ये एक्सपोनेंशियली हुआ. दोनों इवेंट के बीच का टाइम का अगर फर्क देखें तो मतलब इफ अ राजा, मान लो अगर रानियों के साथ शादी करते रहते और एक ही रानी को बार बार प्रेग्नेंट बना, तो किसमें उन्हें समय कम लगेगा? केस ए और केस बी? केस बी. आंसर है केस ए. Again, statistics is not story, it's very much real life. If a person getting married, ठीक है, so the marriages between the sultanate and all doesn't happen like आज ये सोचा कल ये किया, इस तरीके से नहीं होता है. Still happens, it takes time. Okay, and you need to give your wife at least 9 months time to know whether it's a boy or a girl. है ना? Logic is clear. But in these kind of cases, the inner time lags are not there. मतलब दूसरी बीवी ढूंढने का टाइम लैग तो है नहीं. Whenever after giving birth 9 महीना हो गया, उसके बाद 3-4 महीना बाद, then when she is ready, her womb is again ready, they again give it a try. आजकल की लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं, तब पॉसिबल. Can you ever see a normal Indian girl is getting 20 times pregnant? लेकिन पहले जमाने में तो लोगों का, पहले जमाना क्या है, like 50-70 years back भी हम लोगों ने देखा है. Your father has like 5-6 brothers. उनके पिताजी का देखो तो 8-10-15 बहनें थे. Logic is clear. So the time between these kind of cases is so exponential is this case. So whenever we see that which time is comparable, we'll go for exponential. राजा के एग्जांपल से ही पूरा चीज चलेगा.
अच्छा, वेटिंग टाइम अगर करें तो देखो, वेटिंग टाइम इज वेरी डिफरेंट दैन टाइम बिटवीन इवेंट्स. सो वेटिंग टाइम इज लाइव टेस्टिंग. सो इसमें हम लोग लेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन. Geometric distribution. Huh? Stairs or vertical. হ্যাঁ, এটা করতে পারো তো, এক্সপোনেনশিয়াল আর জিওমেট্রিক কে একই ভাবে আমরা. নেক্সট, কন্টিনিউয়াস जनरल डेटा. कॉन्टिन्यूअसली डेटा आ रहा है. इसमें मेरे पास दो ही है, एक में वही z मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे या फिर t डिस्ट्रीब्यूशन, वही छोटा बड़ा हिसाब. So it is what, sorry? Continuous. कॉन्टिन्यूअस जनरल डेटा. And obviously if it's a categorical data then chi-square. Categorical data मतलब क्या है? So in Kolkata there is a very famous pizza which I only like only one pizza, that is Uno Pizza. ठीक है, ये एक इंडियन ब्रांड नहीं है, यूएस का ब्रांड है. ऐसा नहीं कि यूएस है इसलिए पसंद है सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये सच में अच्छा बना और मेरे औकात के बाहर वाला पिज्जा, मतलब खाने के हिसाब से भी और दाम के हिसाब से. But only on Thursdays they give 60% discount. हर थर्सडे लोग 60% डिस्काउंट देता है हम जैसे गरीबों के. तो 600 रुपए का पिज्जा तब आ जाता है 240 है. अब 240 तो खाना खा ही सकते और इट्स गुड. ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये थर्सडे को ही क्यों देता है? कोई और दिन भी दे सकता है, संडे को भी दिया करो. Because Thursday is a type of day where most of the people are veg खाते हैं, इन लोगों का बिक्री कम होता है इसीलिए. तो बोलो सर दूसरे दुकानें तो नहीं देते. See, the dedicated people who have a dedicated taste of things, they are dedicated into everything. मतलब कोई अगर उनो पिज़्ज़ारियो छोड़ के खाएगा नहीं तो उसका धर्म के ऊपर भी वही डेडिकेशन है. तो वो मर जाएगा लेकिन थर्सडे को नहीं खाएगा या फिर ट्यूसडे को नहीं खाएगा. तो अगर वो जब पढ़ाएगा, किसी को ट्यूशन पढ़ाएगा, उसमें भी उसका डेडिकेशन है. वो अगर मोबाइल फोन खरीदने जाएगा उसमें भी उसका डेडिकेशन है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ कुछ चीजों में उसका बहुत डेडिकेशन है, बाकी चीजों में ऐसे ही, ऐसा नहीं. पीपल वंस अ डेडिकेटेड ऑलवेज अ डेडिकेटेड पर्सन और वंस अ लूज इज लूजिंग टू एवरीथिंग. ठीक है. So now the Una Pizarro kind of a thing is a very much categorical data. So only on Thursday they can see there is a spark in sale. जैसे मान लो हाई फाई हेयर कटिंग जो सैलून होता है, ठीक है, ये लोग एक स्पेशल डिस्काउंट देते साल में एक बार. और ये कब देते हैं? दिवाली के एक हफ्ता में. नॉर्मल इंसान मुझे पता नहीं क्यों देते हैं. तो मैंने उनको पूछा आप लोग दिवाली में क्यों देते हैं? दिवाली में सब लोग बाल काटने तो आते हैं क्या? बोले नहीं नहीं सर, दिवाली का वो हफ्ते में कोई नहीं बाल काटता है, नाक का नाखून तक नहीं काटता है, क्योंकि उससे धन क्षय हो जाता है. तो इसीलिए हमारे तो सारे लॉयल कस्टमर ये सब धर्म टाइप के लोग ही. तो हम लोग देखते हैं अधर्मी कुछ आ जाए या फिर किसी को अगर पता नहीं है तो लाइक दिस. So the scenario is when you are categorizing your entire data on a certain zone or a certain day, and you don't want to give a discount, you are not at all happy. ऐसा नहीं कि थर्सडे के उनो पिज़्ज़ारिया थोड़ा खराब तरीके से पिज़्ज़ा बना, चीजें तो एक ही है. But on that day they want to increase the sales somehow, or in order to maintain the same brand. Clear? ये पहला हुआ, लेकिन इससे भी आप लोगों का पूरा क्लियर थोड़ी ना हुआ है, अभी आएगा. Sir, continuous general data, Z का Z normal distribution और T test. देखो यूज Z और T कब होगा? ये सिग्मा अपना नोन है तो Z लगा देंगे, नहीं पता T लगा देंगे. n लेस देन 30 T लगाएंगे, n ग्रेटर देन इक्वल टू 30 Z लगाएंगे. ठीक है, बस इतना ही है दोनों के बीच का फर्क. Z का मतलब है जोड़, Z इक्वल टू जोड़. ओके, सो व्हेन यू नो जोड़ कब आता है? जब चीजें पता रहती है ना. अगर चीजें पता नहीं रहेंगे तो जोड़ नहीं लगा पाओगे. वेरी रिसेंटली आई हैव सीन अ मूवी कॉल्ड फ्रैंकेनस्टाइन बाय गिलेर्मो डेल टोरो.
ठीक है, तुम लोग भी देख सकते हो नेटफ्लिक्स में, है नहीं तो दोसा। हाँ, तो उसमें भी यही है. So you can go for a scientific experiment if you have really good brain and how you can utilize it. उन्होंने सक्सेस तो मिला बट इट वाज a useless सक्सेस. और इन्होंने बहुत सारा स्टोरी में चेंजेस भी किए. आई डिडंट लाइक द मूवी मच, नॉट एट ऑल फ्रॉम एनी पर्सपेक्टिव. चलो ठीक है. Okay, so Z equal to Zor means whenever you know things and when it's a very high thing, then only you go for it. ठीक है. रूल 2 में जाएंगे. chi square कब आएगा? Chi square equal to checking variance. So chi square checks sigma square. ठीक है. Chi square check the sigma square. या फिर z वैल्यू को अगर डायरेक्टली नॉर्मल के बाद वाला जो स्टेप में है जिसमें स्क्वायर में जाना हुआ, तो f डिस्ट्रीब्यूशन में कब जाएंगे? f का ट्रिक क्या है? f मतलब फ्रैक्शन ऑफ वेरिएंस, मतलब फ्रैक्शनल वेरिएंस means we know that the system has some variances but we don't know for what reason it is happening. So that's why we are trying to find out the logic of the variance by separating the variance from the two data sets, है ना. तो कभी भी कुछ भी हो सकता है को मैं इस वक्त ये हो सकता है और उसके बाद ये हो सकता है. मीन्स मैंने पहला ये जो चेयर तुम लोग यू गाइस आर नहीं, तुम लोग शायद दिख नहीं रहा है. मी शो यू द चेयर. ये जो पीछे मेरा जो चेयर दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है, इसे कॉल अ मेश चेयर. दिस इज माय अपने जिंदगी का ये तीसरा चेयर है. ठीक है. सबसे पहले व्हेन आई वाज अ किड, एक कोई मान लो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तब मैंने अपना पहला वाला ऐसा हाई फाई चेयर खरीदा था. 5,000 रुपए देखिए, आज से 10 साल पहले. ठीक है. सो फॉर दैट इन्वेस्टमेंट काफी लोग चेयर कौन खरीदता है, बट आई न्यू दैट आई एम गोइंग टू बी इनटू द टीचिंग और इसमें बहुत सारा वक्त मैं चेयर में ही बिताने वाला. तो कम से कम चेयर तो अच्छा होना चाहिए. और ये चीज मुझे सीखने के लिए मिला जर्मन लोगों से. वो लोग 2-3 दिन तक सिर्फ बाथरूम ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक, मतलब नहाने का ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक लेकर 3-3 दिन तक चेयर में बैठ के काम कर सकते. एक आधा मैंने खुद देखा. तो इन लोगों को अगर हराना है तो मैं तो, माई बॉडी इज नॉट दैट मच रेडी, तो मुझे इसके साथ साथ एक ऐसा अच्छा चेयर भी चाहिए, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, एंटरटेनमेंट, ये सब करके मुझे रेडी करना पड़ेगा. You know, like and go. So when I started working like this, जैसे मान लो I started working with respect to my first big work in life with respect to before my PhD and all. So के the first BCom का किताब लिखना, BCom के लिए मैंने किताब लिखा था BCom Statistics. अब कहोगे BCom का स्टैटिस्टिक्स लिखना कौन सा बड़ा बात? It's hard because you have to solve problems. You have to solve problems. अब solve problem में क्या है? Because BCom will test your patience and believe me guys, for a statistics background, a science background student के लिए BCom का math solve करना was next to death. मरने का मन करना. अरे यार, मतलब कोरिलेशन रिग्रेशन में मान लो x का वैल्यू दिया है 20 वैल्यूज, y का वैल्यू दिया है 20 वैल्यू. अब इसे कोरिलेशन लिखो और वैल्यू है 675 -2 15 8465. कैलकुलेटर में भी करने के लिए मजा नहीं आता था. इट्स लाइक वेरी बोरिंग. यू हैव टू डू इट. सो देयर आई यूज्ड टू स्प्लिट द डेटा इनटू सम पार्ट्स. ठीक है. तो तुम लोगों को भी कुछ कुछ चीजें ऐसे अपनी जिंदगी में करना है इन ऑर्डर टू क्रैक दिस काइंड ऑफ बिगर एंट्रेंस के व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. ओके, वो आपसे क्या चाहते. रिटन एग्जाम में तो सब देख ही चुके हैं. So what they are looking, because whether these concepts comes very quickly in your mind and how can you reciprocate, how can you orchestrate your entire answering mechanism. Orchestrate का मतलब क्या है? Orchestra क्या होता है? सब लोग मिलके ये वो ये मैप हो ये सब बजाता है ना. So how you can orchestrate the thing? तब तो कोई भी कुछ भी बजा सकता है. So everyone has their own notes. ये ब्रिटिश लोग ही सोच सकते हैं, हम लोग नहीं सोच सकते. हम लोग ढोलक फोलक पे खुश है. हम लोग का पुराना जमाने में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ध्यान से देखो, हम लोग कभी भी इतना बड़ा बैंड में नहीं बजाते. और अगर बजाते भी थे तो ढाक जो होता था, हमारे दुर्गा पूजा में अभी जी ढाक 100 ढाकी एक साथ बजाते.
लेकिन सेम ट्यून बजाता है, और सब लोगों के पास जो इक्विपमेंट है दैट इज अ वेरी आइडेंटिकल इक्विपमेंट। और यहाँ तक में अगर वो सब गाने फाने में भी जो हारमोनियम तबला ये सब का इस्तेमाल भी होता था, so that was not very higher number of things have been used। हम लोग यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा का कॉन्सेप्ट नहीं कि इतने लोग को एक साथ कैसे बांधे, 100 लोग एक साथ बजा रहे, एंड ऑलमोस्ट 70 to 80 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो सबका नोट का पैटर्न भी अलग हो। ओके, सो आई एम नॉट अ म्यूजिशियन बट इतना तो थोड़ा बहुत काम करते हुए देखा। Okay, so when the question compares two mean, question में दो mean को अगर compare करेगा तो क्या आएगा? Mean comparison T and Z depending on sigma पता है या फिर नहीं पता। वही Z for जोर, sigma पता हुआ गया तो हो गया Z, sigma नहीं पता है तो हो गया T। नेक्स्ट रूल में जाएंगे, प्रोपोर्शनल गेम अगर खेलेंगे तो प्रोपोर्शनल गेम में क्या होगा भाई? 5%, डिफेक्टिंग रेट, वोटर शेयर। अभी बिहार का वोट का रिजल्ट आ ही रहा है, एग्जिट पोल में ये सब हो रहा है, एनडीए अपना पावर बनाएगा वगैरह वगैरह चीजें। सो इन दिस काइंड ऑफ एग्जिट पोल्स एंड ऑल दिस थिंग, इट इज अगेन अ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पिछले साल का स्ट्रक्चर, कौन से एरिया से ज्यादा लोग वोट देने आए हैं, उस एरिया में किसका जीतने का ज्यादा चांसेस है। मतलब 100 वोट में से 68% वोटर इस बार वोट देने आए हैं बिहार। ओके, तो कौन से एरिया से वो लोग आए, उस एरिया में क्या है, तो उसके हिसाब से भी एग्जिट पोल आता है। फिर आता है स्पेशलाइज पीपल, क्योंकि कोई तो घर में जाए मैंने बीजेपी को दिया है, मैंने एनडीए को दिया है, मैंने भाजपा को दिया है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब अपने इस एरिया में हर साल यही जीतता है। बट दैट्स व्हाई एग्जिट पोल कैन बी रॉन्ग, बिकॉज समटाइम्स पीपल चेंज देयर डिसीजन। Okay, so geographical exit poll is completely different than this kind of stuff. ऐसे बहुत सारे अभी भी और भी सॉफ्टवेयर है। If you are doing a chat GPT a lot of time, then ask your chat GPT to say something about you. They will say some specific things जो तुमको भी नहीं पता। Yeah, they can do। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैंने अपने भाई के साथ किया था, जो हम ना सारा चीजें चैट जीपीटी के साथ शेयर कर। ठीक है, मैंने पूछा तू उसको सिर्फ ये बता, पूछ कि मैं पानी कैसे पीऊं, तो चैट जीपीटी उसे सब तो बताया, लेकिन एक लाइन बोला, एज यू हैव अ हायर टेंडेंसी टू ड्रिंक मोर वाटर एट द नाइट टाइम, सो यू शुड बी गोइंग ऑन अ इवननेस ऑफ द वाटर। तुमने कभी पूछा उसे कि रात के वक्त तुम पानी पीता है? उसको कैसे पता चला कि तुम किस वक्त पानी पीता है? ये तो उसको पता चल रहा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और मैं भी उसका लाइफस्टाइल जानता हूँ, सारा दिन उसे टाइम नहीं है, रात को उसे लगता है 3 लीटर पीना है, पी लेता है। So these actually they are listening to the conversations and reading the all the WhatsApp and all। मैंने बोलता तू तो रात को ज्यादा पीता है, इसको ये पूछ। That also they know before the question even। How do Truecaller picks up so well everything, every information? That is so someone has uploaded। Truecaller happens in 2 ways। Truecaller में मैं अपना नाम खुद लिखता हूँ, मेरा नाम है जेम्स बॉन्ड, लिख दिया, हो गया खत्म। ठीक है, या फिर तुमने लिखा सर का नाम है जेम्स बॉन्ड। अगर ये एल्गोरिथम ऐसा है, अब मान लो तुमने जेम्स बॉन्ड लिख दिया तो मेरा नाम बदल जाएगा? नहीं। लेकिन अगर 100 लोगों ने लिखा तो शायद बदल जाए। लेकिन ये नंबर अगेन इट्स अ वेरी मच डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इफ अ पर्सन यूजेस अ फोन वेरी फ्रीक्वेंटली and he gets a lot of calls, then for that person to change the name by some other person you need at least maybe 50 or 60 days। समझ में नहीं? मतलब मेरे फोन में दिन में 100 कॉल आते, ठीक है, तो मेरा नाम कोई भी स्टूडेंट जाके चेंज नहीं कर सकता। चेंज कर देगा वो, सौरभ सर की जगह पर लिख देगा गौरव सर, चेंज नहीं है। लेकिन यही मान लो मेरी दादी के फोन में अगर होगा, उनको मुश्किल से दिन में 1 फोन आता है। ठीक है, वो भी नहीं आता है, महीने का 2 5 6 फोन आता है। उनका नाम बदल के तुम कुछ भी डाल दो, दादी नंबर 1 डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो जाएगा। So the algorithm picks you on the basis of the total number of intakes. So how powerful you are. More usage means more people know. So there's a higher probability of a fluctuation of a data, type 2 error। ठीक है, taking a wrong value, wrong name। मतलब मुझे तुम्हारा असली नाम पता है, तुम्हारा असली नाम है कोमल, लेकिन तुम लिखती हो मेरा नाम है एलिजाबेथ स्वान।
तुम्हारा नाम है कोमल सिंह और तुमने इंस्टाग्राम में लिखा है एलिजाबेथ स्वाम, तो मुझे तो सच नाम पता है, तो मैं रिकमेंडेशन में बोलूंगा इसका नाम ना कोमल है, कमली बुलाते हैं हम, लाइक दैट। तो वो तभी तुम मेरा बात सुन के एलिजाबेथ विल बिकम कमली इफ यू आर नॉट अ फ्रीक्वेंट यूजर ऑफ इंस्टाग्राम, ठीक है। सो दिस इज हाउ द एल्गो वर्क्स, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्टैट जानना मतलब ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। अब आता है गुडनेस ऑफ फिट। ये देखो, ये नाम का सवाल, ये भी एक गुडनेस ऑफ फिट। व्हिच नेम फिट्स यू वेल? अगेन दोज पीपल हु हैव नेम्ड देमसेल्व्स, जिन लोगों ने अपना नाम ट्रू कॉलर में जाके खुद से दिया है, उनका नाम बदलना बहुत मुश्किल। लेकिन हम ज्यादातर लोगों का नाम ट्रू कॉलर ने दिया ही नहीं, सॉरी हमने नहीं दिया है, किसी और ने दे दिया। जैसे एक प्लम्बर का नाम, उस दिन मेरे घर में एक नया चेयर आया है, तो चेयर वाले का नाम है पप्पू चेयर डिलीवरी, ठीक है। कि अपना नाम थोड़ी लिखेगा पप्पू चेयर डिलीवरी, ये नाम अपना लिखेगा प्रताप सिंह चौहान। अगर ये इसको चांस मिलता है ट्रू कॉलर में लिखने, तो प्रताप सिंह चौहान आपके घर में चेयर डिलीवरी देने आए, है ना। जैसे कभी कभार मुझे घर पहुंचाने के लिए मान लो औरंगजेब आते हैं, कभी बाबर आ जाते हैं, ठीक है, कभी अकबर बादशाह आ जाते हैं घर पहुंचाने, क्योंकि उबेर ड्राइवर का नाम ऐसा होता है ना, अकबर इज कमिंग सून टू पिक यू अप। ओके, सो दैट्स आर लाइक goodness of it is just like this, okay, how much accurately you can go means how to mitigate the error of the data. So simple सा chi square का गेम है भाई, और कुछ है क्या? नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये है सफेद पढ़ना चाहिए, पहने क्या लो चलता है। सो एवरीथिंग इज अ गुडनेस ऑफ फिट डिसीजन। जैसे मान लो ये पेन, पहला पेन मेरा है, ये पेन पूरा नया है, ये चला नहीं, सो आई हैड टू टेक अ डिसीजन। ये डिसीजन क्या है? एम आई सो ऑयली कि पेन चल ही नहीं रहा है ना। आई एम लाइक अ वेरी ऑयली स्किन, यू नो, पेन तो ठीक है, स्किन ऑयली है, कुछ मेरे ऊपर दाग ही नहीं लगा। फिर मैंने सोचा दूसरा पेन से ट्राई कर लेते, खुद के ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस रखने से अच्छा है। Getting the logic? So here the goodness of faith comes with not the n equal to 2 or 3 or 4th try. It comes with which pen fits onto the screen direct. Okay? जैसे मान लो इसके साथ सिचुएशंस हम लोग ऐसे कह सकते हैं। नाउअडेज मैं जब बैंक में जाता हूँ, तो बैंक में मेरे मैनेजर मेरा ही स्टूडेंट, मेरा जो मैनेजर है वो मेरा ही स्टूडेंट, तो वो मुझे एक बात कहती है कि सर you have taught us about the goodness of the structure and all these things, but you know, not everything is a binary. Nowadays all the bank rules have been given on the basis of a binary gender structure, like male or female, age less than 60, more than 60, ठीक है, इसी के हिसाब से रेट तय होता है। But they have now added a new variable that is called transgender. And transgender people get an extra 1% benefit as well. ये नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता। So how can you fit them into a mathematical programming where it is only said with respect to age criteria, 60 के नीचे 60 के ऊपर। So now नीचे में एक और बॉक्स बना के बोलना पड़ेगा, अच्छा ठीक है 60 के ऊपर हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रांस हुआ तो 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 6 नहीं। Are we getting it? समझ में आ रहा है कहां पर पहुंचने का कोशिश करते हैं?
So goodness of it is trying to get you to a situation where the distributional decision is becoming not easier but prompt, apt. जैसे आप रात को सोते वक्त ये डिसाइड करते हैं कि आज ये ओटीटी में जो देख रहे हैं वो खत्म करके सोए या फिर बाद में देखें। ये कैसे डिसाइड होता है? नेक्स्ट दिन कोई काम का चीज है कि नहीं, ठीक है, उठ सकते हैं कि नहीं, अपना हिस्ट्री देखते हैं पिछले दिनों में, हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन दिस केस। तो मैंने अपने जिंदगी में सिर्फ एक ही सीरीज, 2-3 सीरीज ही ऐसा मेरे लिए भी था जो तुम लोग भी अगर देखना चाहोगे, वन आई वुड हाईली रिकमेंड इज दैट दिस पाताल लोक, नॉट वन, पाताल लोक वन इज लाइक वही बिहार झारखंड वही पहली लड़ाई, इट्स लाइक प्रीटी कॉमन, बट पाताल लोक 2 इज द फर्स्ट सीरीज जो मैंने रात को 10:30 बजे क्लास लेके सुबह 4 बजे तक देखी और नेक्स्ट दिन 7 बजे सोते हुए क्लास लिया, एकदम बकवास क्लास लिया। सो माय पॉइंट इज समटाइम्स, वैसे अगर आउट ऑफ द टच कहे तो ये क्यों अच्छा है, 3 रीजन की वजह से। एक कमाल का स्टोरी लाइन, ऊपर से है दिस शॉट इन नागालैंड, नागालैंड में इंडिया का कुछ भी नहीं, ना तो मूवी ना तो कुछ, यू गेट टू नो द कल्चर एंड द थर्ड इज द यूज ऑफ म्यूजिक, मतलब लोकल नागा बैंड जो है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इतना सारा बैंड है, अच्छा, दे आर लाइक फॉरेनर्स, उन लोगों का म्यूजिक का स्टाइल इज नॉट लाइक आवर क्या ये इंडियन देसी स्टाइल नहीं है, हनी हनी सिंह टाइप नहीं, ठीक है, दे आर लाइक प्रॉपर रैपर एंड ऑल, ठीक है, मतलब इन लोगों को उतना सोचो, नॉर्थ ईस्ट को अगर सिर्फ म्यूजिक की वजह से भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट करता है, तब भी हम लोग दुनिया में बवाल मचा है ना। एक आदमी सिर्फ दौड़ता है और उसकी वजह से हम लोग जमाइका का नाम जानते हैं, नहीं तो जमाइका को कौन पूछता है, कौन है वो? हुसैन बोल्ट की वजह से एक आदमी पूरा देश का रवैया बदल दिया, जमाइका का नाम जानते हैं। चिली, दुनिया भर के लोगों को कोई फर्क पड़ता है चिली में कुछ हो ना, सिर्फ वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलते हैं, बस इसकी वजह से सब लोग चिली का नाम जानते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ चिली फ्रॉम अ हिस्ट्री बुक, जियोग्राफी बुक? हिस्ट्री छोड़, जियोग्राफी बुक में कभी आया इसका नाम? नहीं है। So this is the kind of a thing our Northeast can get their name into the big thing through their music. ये मुझे लगा, मेरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं उन लोगों को डू द म्यूजिक, ये तुम लोगों के खून में है। And Northeast is the only community who speak very well proper English, because a lot of them are Anglo-Indians. Anglo means half of them means some of their parents have a European background directly. जीन में है भाई। Okay, so now coming back to our study, एक और रूल में जाते हैं, रेशियो ऑफ वेरिएंस। तो ऑब्वियसली यहाँ तो रेशियो का गेम मतलब एफ होगा। दैट्स व्हाई एनोवा में लोग बोलते सर एनोवा और एफ तो एक ही हुआ सर, नहीं, एनोवा यूजेस एफ टेस्ट टू फाइंड द फाइनल कंक्लूजन, बट एनोवा इज नॉट एफ टेस्ट। जैसे एनकोवा, सो 1 2 3 3 3 4, 1 2 2 3 3 4, बट 1 2 3 4 इज नॉट कनेक्टेड। सो एनकोवा का डिजाइन अगर आप भूल जाते हो तो ऑडी का डिजाइन नहीं आता। सब रिश्ता है 1 2 2 3 3 4, 1 2 3 4 में कोई रिश्ता है? Is there anything common between 1 2 3 4? No. Is there anything common between 1 2 3 2 3 4? नहीं, सिर्फ पास वाले के साथ कॉमन लेके आता है। So that is the ANCOVA design. ANOVA में it's easier only TSS equal to ESS plus RSS. RSS मतलब nothing to do with BJP here. Okay, so here is a very राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल नहीं है, रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स है। ESS is explained sum of squares, है ना। तो एक फ्लक्चुएशन का कुछ पार्ट भैया मैंने एक्सप्लेन कर दिया और कुछ पार्ट नहीं कर पाया, मेरे भी ऊपर से गया। दैट इज द थिंग, एंड वी विल चूज ओनली दोस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस वेयर ESS is greater than RSS, है ना। So if you really want to create an impact into the mind of the interviewer, then you have to be very much clear cut. So that's why I am planning to give training program of speaking training to students.
इट्स अ डिफरेंट प्रोग्राम. देखो, बात करना तुम्हारे नॉलेज के साथ एसोसिएटेड हमेशा नहीं है. एंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल यूपीएससी का वैसा नहीं, आप जिन देश के लिए क्या करना चाहेंगे, कैसे देश को बदलेंगे, क्यों वगैरह. ठीक है. और मिस इंडिया भी बनने नहीं जा रहे हो. अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए तो आप क्या करेंगे? मैं गरीबों में दान कर दूंगी. कोई नहीं करता. ठीक है. पहले तो 1 करोड़ रुपए मिलता भी नहीं है फ्री में, और मिले तो कोई दान करेगा, क्योंकि उसको मिलने के लिए भी बहुत पापड़ बेलना है. उसके बाद कौन दान करेगा? मैं अपने काम के लिए रख. ओके. सो द थिंग इज दैट द स्पैन ऑफ दिस प्रोग्राम, ये मेरा जो है स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, देखो, इट्स नॉट ओनली स्पीकिंग, क्योंकि आपको मैथमेटिकल लॉजिकल स्पीकिंग करना है. ओके. तो इट्स नॉट लाइक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं. हाउ टू स्पीक लाइक अ मैथमेटिशियन, लाइक अ स्टैटिस्टिशियन, लाइक एन इकोनॉमिस्ट इन फ्रंट ऑफ एटलीस्ट 5 पीपल. ठीक है. और ये भाई, ये प्रोग्राम ऑफलाइन में अभी उपलब्ध है नहीं है, ऑनलाइन में मैं करने का सोच रहा हूँ. ठीक है. लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन बाद में दोनों ही एक साथ करेंगे. Not everyone can equally speak. That's why in these big shot examinations, many of the cases I have seen, people are unfortunately not getting the thing. मिलता नहीं है चांस. मिलना चाहिए था, लेकिन मिलता है. और उसकी वजह से उसका स्टैटिस्टिकल नॉलेज इज नॉट रिस्पॉन्सिबल. तो दिखने में खराब है क्या, काला है इसलिए नहीं मिला? नहीं, बट अपना बात रख ही नहीं पाए. ओके. So in general, this is the entire interview system is flawed, and many of the cases, it's a type 2 error happen. मतलब गलत इंसान घुस जाता है, सही इंसान बाहर रहता है. बट हमारे पास कोई रास्ता नहीं. रास्ता क्या है कि you become थोड़ा बहुत सही and get into the system. पूरा सही तो मैं नहीं बना सकता. हर दिन एक टास्क रहेगा. जैसे इसमें टास्क रहेगा, एक्सप्लेन Boole's inequality and difference between Boole's inequality and next दिन inequality अंदर जाएंगे, and Chebyshev's inequality in front of a mirror, record the video, send it to me. जिसको ये प्रोग्राम में आना है वो अपने हिसाब से स्टैटिस्टिक्स से ऐसा कोई भी 2 टॉपिक चूज कर सकता है, और उसके ऊपर आईने के सामने या फिर फोन के सामने बात करके मुझे भेजो. प्रोग्राम का खर्चा कितना है सर? आप इतना बोल रहे हैं, जरूर पैसा वैसा लगेगा कुछ? बताइए कितना पैसा खर्चा करना है. इट्स अ फुल फ्री प्रोग्राम. ओके. बट ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट्स. सबके लिए नहीं है, क्योंकि इस प्रोग्राम में अगर वो स्टूडेंट आया जिसको ऐसे ठीक है कर लेते हैं, इट्स इंटरैक्टिव प्रोग्राम. ये वन साइडेड प्रोग्राम नहीं है इस क्लास की तरह. तो इसीलिए इस प्रोग्राम में आने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है? सेंड मी अ वीडियो, रिकॉर्ड अ वीडियो ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. 2 वीडियो मेरे लिए चूज करो जिसका मिनिमम लेंथ 2 मिनट हो. फोन सामने रखो, बकबक करो, हो गया, भेज दो. उतना आसान नहीं है. ठीक है. 10 बार करना पड़ेगा, और अगर आप रिजेक्ट होते हो मैं बोल दूं. इस लॉजिक की वजह से मैं इस वीडियो को रिजेक्ट कर रहा हूँ. फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कैसा है वो मैं नहीं देखूंगा. ठीक है. घर के पीछे अगर सुंदर सा बैकग्राउंड लगा है वो नहीं, लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप इसके लिए कितना सीरियस हो. मतलब गेंजी पहन के बैठ के एक भेज दिया, सो यू आर नॉट सीरियस अबाउट इट. ये नहीं बोल रहा हूँ बालों में एकदम कलर करके ऐसे भेजो, बट हाउ मच सीरियस अबाउट यू आर. मतलब चारों तरफ आवाज आ रहा है, बेटो खाना लगा, ऐसा चल रहा है, तुम वीडियो बना रहा है. नहीं. So you have to go to a proper place, then you have to do it. So are you a serious kind of a person? Because it's a very serious business is happening. मैं जानता हूँ शायद मेरे पास ऐसा 1 या 2 ही वीडियो आए, 5 वीडियो आए, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ. मैं चाहता हूँ कि कम से कम 50-100 वीडियोस आए. अभी तक ये प्रोग्राम मैंने 3 बैच में बोला है. टोटल नंबर ऑफ वीडियोस रिसीव्ड इन द पास्ट 36 आवर्स इज 0. ठीक है. शायद बना रहे हैं, शायद लोग डर रहे हैं, शायद आएगा ही नहीं, आई डोंट नो, बट योर डोर्स आर ओपन, यू कैन सेंड इट.
ठीक है, because especially if you are sitting into those examinations which has associated with an interview, so I will train you for free. और याद रखिए भाई, ये YouTube वीडियो देख के नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because YouTube cannot teach you, they cannot see you, they do not know you. ठीक है, यहाँ पर मैं अभी तक तो नहीं, शायद कभी कंप्यूटर रोबोट खरीदने के लिए मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं. भेजिए मुझे ये क्लास का रिकॉर्डिंग. और हाँ, ये जो पोर्टल का तो लेके थोड़ा टेंशन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. पोर्टल में थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी, सबका लेक्चर ही मैं ऐसे इस हफ्ते का जो क्लास मैं ले रहा हूँ सब दे दिया. तो आपको अपना क्लास का टाइमिंग पता है, आप सिर्फ वही क्लास में घुसेंगे. दूसरे क्लास में घुस सकते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञान ही तो बट रहा है. ठीक है, लेकिन सबके लिए अलग अलग सा भी हम लोग बना नहीं पाए. ठीक है, तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस दिखेंगे, इसलिए मैंने उसके ऊपर लिख दिया स्टैटिस्टिक्स ये वो. ठीक है, सो इट्स अ पैरेलल काइंड ऑफ अ थिंग. शायद उसमें रिपीटेटिव भी लगेगा, लेकिन इट इज एसोसिएटेड. अब सबका बैच और स्ट्रक्चर वाइज मैं बहुत जल्दी इसको भी सेग्रीगेट कर दूं, तो वो भी आपको अलग भी चीजें नहीं आएंगे. बट हैव यू सीन, पहले जो सिर्फ एक लिंक ओरिजिनली एक व्हाट्सएप में अनऑफिशियली एक लिंक की तरह आता था, अभी एक प्रॉपर वेबसाइट की तरह. नाउ लेक्चर्स भी वैसे ही आएंगे. अभी हम लोग का क्या है, ऐसा है, यूट्यूब का एक अनलिस्टेड प्राइवेट वीडियो में हम लोग करके देते हैं, उसमें से देखो, उससे अनलिस्टेड करके करो. इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज प्रोबेबिलिटी लिखो, कितना प्रोबेबिलिटी पेज में आ जाएगा, क्लिक करो, खुल गया, हो गया. दैट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू गाइस. ठीक है, ओके.